Hello friends, welcome to TechCube Gate classes. My name is Professor Vivek Singh Rathore and I am Assistant Professor at Government Engineering College Bilaspur, Chhattisgarh. And in this video lecture series, I am dealing with Signals and Systems subject. And today we'll start with module 4, that is Fourier representation for aperiodic signals. So till now we have completed almost 3 module and almost 24 lectures are completed, and this will be 25th lecture. So if you have you are seeing this video at a first time, so you should watch all the videos which are previous, and you can see in the description box also you will get the link, and you should join our telegram group also for further queries and doubt removal. Everything will be dealt there only. So we'll start with our module 4 today. Let's get started. See, today we'll start with our topic Fourier representation. Fourier representation for aperiodic signals. Generally we'll see for Fourier representation for aperiodic signal, but we'll see some different techniques, indirect techniques for periodic signal also, but mostly we'll see for aperiodic signal. So let's get started. In this chapter what we'll be seeing is first topic we'll be seeing in this module will be magnitude. Okay, magnitude and phase representation of Fourier transform. Okay, whenever we will take Fourier transform, then what will be the magnitude and phase representation that will be seen. Then we will see the existence condition. Okay, then we will see Fourier transform for standard signal. Some standard signals are there which we have seen in the module 1 also, some standard signals. So we'll deal with some Fourier transform for standard signal like that of impulse. Okay, impulse, double-sided exponential function, like double-sided exponential function will be there. Okay, and we'll see signum function. Signum function will be there, and our unit step signal will be there. Our rectangular signal will be there. Okay, rectangular signal will be there. Our triangular signal will be there. All these type of signals, what will be the Fourier transform for standard signals, we will take deal. And then we'll see properties of Laplace Fourier transform. That is our time shifting property, linearity property. Okay, linearity property, time shifting property. Okay, and we'll see frequency shifting also, frequency shifting property, and time reversal. Okay, time scaling also we'll see. And then we'll see differentiation property, integration property, and finally we'll see convolution property. So this all are the syllabus for our this module, fourth module, Fourier representation for aperiodic signal. So let's get started with our first topic. So actually what is Fourier transform? तो सबसे पहले we'll see what is actually Fourier transform. Fourier transform है क्या? तो हम इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी फोरियर सीरीज भी देखा है. तो फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या अंतर है? देखिए, फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए होता है. ठीक है, फोरियर सीरीज इज फॉर पीरियोडिक सिग्नल, एंड व्हाट वी वर डूइंग द इट्स मैग्नीट्यूड एंड फेस रिप्रेजेंटेशन एट इंटीजर मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी. अगर आपको याद होगा तो फोरियर सीरीज में हम लोग कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल मान लीजिए है, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में पर्टिकुलर उसका कोई मैग्नीट्यूड होता था. ठीक है, और उसका कोई फेज होता था. लेट सपोज ओमेगा नॉट पे था, फिर ये 2 ओमेगा नॉट पे इंटीजर मल्टीपल उस पे हम लोग उसका मैग्नीट्यूड और फेज देखते थे कि वो कितना वैल्यू है उसका. ठीक है, ये होता था आपका फोरियर सीरीज में. सेम आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी होता है, लेकिन फॉर ए पीरियोडिक टाइप ऑफ सिग्नल. जैसे ए पीरियोडिक सिग्नल हो गया, ठीक है, ये ए पीरियोडिक सिग्नल हो गया, ये सब क्या है, ए पीरियोडिक सिग्नल है. तो इस टाइप के उसमें भी हम बेसिकली टाइम डोमेन सिग्नल, ये टाइम डोमेन है,
ठीक है, दिस इज टाइम डोमेन सिग्नल विल रिप्रेजेंट दिस टाइम डोमेन सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन ओनली, बट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग सिर्फ एक ही ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट इंटीजर मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी पे नहीं लेंगे हम, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं लेंगे हम, कंटिन्यूअस वैल्यू लेंगे। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी कंटिन्यूअस हो सकती है, ठीक है, कंटिन्यूस ही होगी। और बात यह है कि इसमें ओमेगा की वैल्यू अपन लेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग हमेशा एन ओमेगा की वैल्यू लेते थे। अगर आपको याद होगा दोनों के फॉर्मूला में भी इतना ही अंतर आएगा कि यहाँ पे एन ओमेगा है और यहाँ पे सिर्फ ओमेगा की वैल्यू ली जाती है। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको अगर हम शब्दों में लिखें तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, बेसिकली इट इज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन, इट इज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ये एक फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, टू किसका, टू अ फंक्शन ऑफ, टू अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। जो भी आपका सिग्नल है जो टाइम और स्पेस का के फंक्शन में है, उनका रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में करने का तरीके को आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। तो फिर इसका कोई मैथमेटिकल तरीका है क्या कि हम इसको कैलकुलेट करें? देखिए, आपको मैं फिजिकल एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, फिजिकल में आप कभी गिटार देखे हैं क्या? कोई आप ऐसे करके ऐसे गिटार देखे होंगे, यहाँ पे ऐसे कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसा रहता है जिसमें लोग इसको कॉर्ड को वाइब्रेट करते हैं और उससे एक वॉइस आता है, मतलब साउंड आता है बेसिकली। आप कभी कभी सुने होंगे लो फ्रीक्वेंसी पे या हाई फ्रीक्वेंसी पे बजाना, ठीक है, साउंड आना जो है होता है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग को, कॉर्ड को अपन वाइब्रेट करते हैं और उससे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, वो साउंड के टर्म्स में होती है, उसकी कोई एम्पलीट्यूड होता है और वो हम लोगों को सुनाई देता है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्म ही तो हो रहा है। आप टाइम के रिस्पेक्ट में आप उसको वाइब्रेट कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, स्पेस के रिस्पेक्ट में, और वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है जो साउंड के टर्म्स में हमको सुनाई देती है ना। तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म तो हो ही रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हो ही रहा है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक सीधा सीधा फंडा है वहां पे। अगर आपको कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली किसी भी सिग्नल का, मान लीजिए कोई सिग्नल आपका एफ टी दिया है, इसको अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म में करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है, डी टी, और यही आपका एफ ओमेगा कहलाएगा। मतलब अगर कोई सिग्नल एफ टी आपका दिया है, ठीक है, एफ टी आपका दिया है, उसको अगर आपको एफ ओमेगा में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी में, आपको याद होगा कि वहां पे हम लोग एन ओमेगा की बात करते थे क्योंकि हमेशा आपका इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता था फोरियर सीरीज में। यहाँ पे हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ओमेगा, और आपको अगर कन्वर्ट करना है कोई आपको टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो आपको एफ टी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, और ठीक है, और उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और आपको यहाँ पे ये एफ ओमेगा मिल जाएगा। अगर आपको एफ ओमेगा दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी से अगर आपको टाइम डोमेन में करना है, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, आपको अगर एफ टी चाहिए वापस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 पाई करना पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, एफ ओमेगा तो है ही, ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी, डी ओमेगा रहेगा, ठीक है, डी ओमेगा नॉट या डी ओमेगा टी आप ले सकते हैं, जे ओमेगा टी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी एफ ओमेगा है। आपको अगर इसी को रिलेट करते हैं अपन फोरियर सीरीज से, फोरियर सीरीज याद है क्या, एफ टी अपन लिखते थे, तो एफ टी क्या करते थे, एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। आपको याद है क्या, क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा एन ओमेगा नॉट की बात करते हैं और यहाँ पे सिर्फ हम लोग ओमेगा की ही बात करते हैं। तो क्या आपको वैसा ही लग रहा है क्या कि एफ टी अगर हमको चाहिए, एफ टी हम एफ टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बस 1/2 पाई नहीं है, तो यहाँ पे आपका एफ ओमेगा है, यहाँ पे सी एन है, और ई टू द पावर जे एन एन ओमेगा नॉट टी है, ये है, इंटीग्रेट तो कर ही रहे हैं। और अगर आपको जब यहाँ पे सी एन की वैल्यू चाहिए होती थी, तो सी एन को आप कैसे करते थे, सी एन रिप्रेजेंट करने के लिए आपको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, है ना, डी टी,
आप ये इस्तेमाल करते थे, अगर आपको ध्यान होगा सी एन की वैल्यू, और यहाँ पे आप क्या करते थे 1 बाय टाइम पीरियड भी आप लेते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए जब सी एन के लिए यहाँ पे अपन कर रहे हैं एफ टी है, ई टू माइनस जे ओमेगा टी है, ई टू माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी है, लगभग आपका सेम है। आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी वही कहता है, फोरियर सीरीज भी कहता है, बस पीरियोडिक और ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए होता है जनरली। तो आप ये बोल सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है इट इज यूज फॉर एनालिसिस। आप इसको एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के एनालिसिस करते हैं? ए पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, है ना। ए पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए हम लोग जनरली इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, आई हैव टोल्ड यू द मेन फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला, ये आपका मेन मैथमेटिकल फार्मूला होने वाला है जिसके से हम चीज़ों को निकालेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी से टाइम में कन्वर्ट करना है तो आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये दो फार्मूला के बेसिस पे आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म बनने वाला है। और ठीक है, तो चलिए हम, मेरे ख्याल से आपको मैंने ये तो समझाया। अब हम लोग पहला टॉपिक आते हैं कि मैग्नीट्यूड और फेस रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो इसके लिए चलिए हम एक आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक सिग्नल समझाएंगे और उससे फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन से ही सीधा शुरू करता हूँ। अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है ऑफ एफ टी, एक सिग्नल एफ टी दिया है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, और एफ टी क्या है? एफ टी आपको अगर एक ऐसा एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व दे दिया है e टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू टी, ये एक सिग्नल दिया है, दिस इज योर एफ टी, और इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। यू नीड टू कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर दिस टाइप ऑफ सिग्नल। नाउ सी, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला हम क्या करने वाले हैं, हम उसको रखेंगे। तो आपको एफ ओमेगा निकालना है, तो एफ ओमेगा वी कैन कैलकुलेट इट एज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। एफ टी क्या है? ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, और इसको हम क्या करेंगे ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी में इंटीग्रेट करेंगे। चलिए इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या होता है। यू टी को तो आप जानते हैं, यू टी कोई भी सिग्नल से मल्टीप्लाई होता है, मतलब उसका वेरिएशन जीरो से स्टार्ट होना शुरू होता है, क्योंकि यू टी जीरो से ही स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे जीरो से इनफाइनाइट लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस ए टी और ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। इसको आप थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हैं, यू कैन एक्सपांड दिस सिग्नल। सो व्हाट यू विल गेट, जीरो टू इनफाइनाइट इज देयर ई टू द पावर माइनस ऑफ, आप क्या ले लीजिए, a प्लस जे ओमेगा एंड दिस विल बी टी एंड डी टी विल बी देयर। सो अब इस टाइप का सिग्नल है। अब इसको अपन एक्सपांशन करते हैं, मतलब ये इंटीग्रेशन हटाते हैं, तो ई टू द पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी तो रहेगा ही, यहाँ पे भी ए प्लस जे ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे, और इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से इनफाइनाइट। तो आपका जानते हैं कि टी ई टू द माइनस इनफाइनाइट जीरो होता है, ई टू द जीरो वन होता है, और ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा 1/a प्लस जे ओमेगा। तो सी व्हाट वी गॉट आपका। अब आपको देखिए, कोई भी चीज़ को मैथमेटिकली वैसा मत समझिए, आपको फिजिकली समझना है कि हो क्या रहा है। आपका ये एक सिग्नल है, ठीक है, ये एक सिग्नल है ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी। ये किस में है? ये है आपका टाइम डोमेन में, है ना। टाइम डोमेन में ये सिग्नल है। टाइम डोमेन में बेचारा सिग्नल ऐसे ऐसे धीरे 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 गिरता चला जा रहा है। ये इसका ओरिजिनल वेरिएशन है। इसका हम चाह रहे थे, हम देखना चाह रहे थे कि फ्रीक्वेंसी में अगर अपन देखें तो इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इसका होता होगा फ्रीक्वेंसी में, कंपोनेंट क्या क्या होंगे। तो हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, तो हमको ये पता चला कि ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म या फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन ये है। अच्छा, अब ये है एक्चुअली ऐसा है, लेकिन इसको अपन मानते हैं कि ये नीचे में जे वाला कंपोनेंट है, तो थोड़ा रियल और कॉम्प्लेक्स को अलग ही कर देते हैं। तो रियल और कॉम्प्लेक्स को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ए प्लस जे ओमेगा है इंटू ए माइनस जे ओमेगा और इंटू ए माइनस जे ओमेगा करना होगा, जिससे आपको यहाँ पे आ जाएगा कि ए माइनस जे ओमेगा तो हो गया, और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिससे आपको इसको रियल और इमेजिनरी में अलग करते बन जाएगा ए बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस जे लिख लेते हैं अपन, और ओमेगा बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप बिल्कुल वैसा भी कर सकते हैं कि इसको आप यहाँ प्लस लेके यहाँ पे आप माइनस ले लीजिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका जो एफ ओमेगा की वैल्यू है वो एक रियल पार्ट में टूट चुका है, और यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट में टूट चुका है। मतलब
इमेजिनरी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम फिर से मैं आपको वही समझा रहा हूँ, ये टाइम डोमेन में वेरिएशन है, इसका फ्रीक्वेंसी में हम निकालना चाहे तो हमको कुछ रियल पार्ट आया, कुछ इमेजिनरी पार्ट आया। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को तो हम प्लॉट भी कर सकते हैं, तो प्लॉट करके देखते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। देखिए अगर आप देखें तो बेसिकली एफ ओमेगा, ठीक है, एफ ओमेगा का ये वाला रियल पोर्शन है और ये इमेजिनरी पोर्शन है। आप वैसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे ए बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। अगर आप रियल पार्ट को एफ ऑफ आर अगर मैं बोलता हूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं एफ ओमेगा का रियल पार्ट बोल रहा हूँ। तो अगर इसको देखें तो ये है ए बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर यही मैं एफ आर ऑफ माइनस ओमेगा ले लूँ तो क्या आएगा, ए बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ओमेगा में माइनस करूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो वो वापस सेम आ जाएगा। क्या दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो रियल पार्ट है वो क्या है, इवन है, इवन इन नेचर है ना। सेम चीज अगर मैं एफ ऑफ इमेजिनरी ऑफ ओमेगा करूं तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और अगर यही चीज मैं इमेजिनरी पार्ट का माइनस ओमेगा ले लूं तो क्या आएगा, इसका आएगा प्लस ऑफ ओमेगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं क्या, ये दोनों बिल्कुल अलग है। और अगर मैं इसी में माइनस ऑफ एफ आई ओमेगा कर दूं, माइनस ऑफ ओमेगा, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा माइनस ओमेगा बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर है? तो आप ये देख पा रहे हैं क्या कि ये दोनों जब दोनों इक्वल ना आए और ये इक्वल आए तो आपको समझ जाना है कि ये सिग्नल क्या है, ऑड है ना। तो आपको इमेजिनरी पार्ट इसका ऑड इन नेचर आपको दिख रहा होगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, मैग्नीट्यूड और फेस रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, वी हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ e to the power minus 80 ut. What we have done, we have just transformed it through a Fourier transform into frequency domain. So what we get is f omega is equal to a by 1 by a plus j omega. We have separated it in real term and real part and imaginary part. So what we got, a by a square plus omega square and plus j this part. We have analyzed this, that our f of omega real part is even in nature and imaginary part is odd in nature, what we have analyzed here. Okay, fine. So now see, now what we want to see is our f of omega. This, from this equation you know f of omega, a by a square plus omega square plus j minus omega a by a square plus omega square. This is our f omega. Now we'll check f of माइनस ओमेगा एब्स्ट्रिक्ट। ओके, अगर हम एब्स्ट्रिक्ट ले रहे हैं, मतलब कॉन्जुगेट ले रहे हैं और माइनस ओमेगा ले रहे हैं तो क्या फर्क आएगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस ओमेगा लेंगे तो कोई होगी बात, दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे अपन कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो जे वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो माइनस जे। और बात यह है कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ माइनस ओमेगा है और माइनस ओमेगा को हम माइनस करने वाले हैं, तो यहाँ पे प्लस ओमेगा हो जाएगा बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या ये एफ एब्स्ट्रिक्ट ऑफ माइनस ओमेगा एफ ओमेगा के बराबर है क्या? तो बिल्कुल बराबर है। तो इससे आपका ये भी साबित हो रहा है कि एफ ऑफ ओमेगा जब कभी भी एफ ऑफ एब्स्ट्रिक्ट माइनस ओमेगा के बराबर होता है, ये कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होता है, तब आपको ये मान लेना चाहिए कि जो टाइम डोमेन वाला सिग्नल है, इसका टाइम डोमेन वाला एफ टी की बात कर रहा हूँ, एफ टी टाइम डोमेन वाला सिग्नल है, ये बिल्कुल रियल वैल्यूड होगा, ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड नहीं होगा, ये बिल्कुल रियल वैल्यूड होगा, है ना। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको ये पूछता है कि एफ टी रियल वैल्यूड है या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड चेक करना है, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला पार्ट है, जैसे हम फोरियर सीरीज में भी करते थे, सी ऑफ माइनस सी ऑफ एन इज इक्वल टू सी ऑफ माइनस एन कॉन्जुगेट अगर आ जाए तो हमारा फोरियर आपका सिग्नल रियल वैल्यूड होता था टाइम डोमेन में। तो सेम यहाँ पे भी है कि अगर एफ ओमेगा है इज इक्वल टू एफ ऑफ एब्स्ट्रिक्ट माइनस ओमेगा अगर बराबर आता है, तो आपको एफ टी को रियल वैल्यूड आपको घोषित कर देना चाहिए। तो देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी एनालिसिस ही कर रहे हैं। एक सिग्नल को हम पूरा चीर फाड़ करके अलग अलग कर रहे हैं, हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके गए, फिर उसका हम रियल पार्ट को अच्छे से एनालाइज किए कि भैया वो इवन है कि ऑड है, इमेजिनरी पार्ट को किए, फिर हम ये भी चेक किए कि पूरा एफ ओमेगा मतलब एफ टी आपका रियल वैल्यूड था कि एफ टी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड था, ये सब चेक हो गया।
अच्छी बात है। अब हमारा जो मूल उद्देश्य था वो हम लोग देख लेते हैं। मूल उद्देश्य ये है कि भैया हमारा ये सिग्नल दिया हुआ है, ये सिग्नल ये सिग्नल को क्या करना है, ये सिग्नल को हम लोगों को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन इसका मैग्नीट्यूड और फेस रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो मैग्नीट्यूड और फेस रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग चलते हैं इसके मैग्नीट्यूड वाले ग्राफ में। तो मैग्नीट्यूड देखिए, एफ ओमेगा कायदे से क्या आया है, एफ ओमेगा कायदे से आया है 1/a+j यही है। और इसका एफ टी क्या था, इसका एफ टी था e⁻⁻at यही था, है ना। ओके, अगर आपको क्या पता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी में अगर कोई सिग्नल है, मान लीजिए, या टाइम में कोई सिग्नल है, हर सिग्नल का एक मैग्नीट्यूड होता है एफ ऑफ ओमेगा, इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा और इसका फेस भी होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सिग्नल टाइम डोमेन हो या फ्रीक्वेंसी डोमेन हो तो भैया उसका कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड होगा, उसका कोई ना कोई तो फेस होगा। तो हम चलते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने। तो एफ ऑफ ओमेगा का हम मैग्नीट्यूड निकालें तो हमको क्या मिलेगा, 1/√a² + ω²। और अगर हम इसका फेस निकालने जाएं एफ ऑफ ओमेगा की तो हमको मिलेगा हमको मिलेगा -tan−1 ये हमको मिलने वाला है ना। यहाँ से अपन को माइनस, ये ऊपर नीचे है तो tan−1 ω/a इमेजिनरी बाय रियल पार्ट आ जाता है ना, ये है। तो क्या हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, हम इसको अगर प्लॉट करें तो देखिए इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मानते हैं और ये एम्पलीट्यूड का एक्सेस हो गया। अगर आप ओमेगा की वैल्यू 0 रख दें तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वैल्यू जो आएगी ओमेगा की वैल्यू 0 पे 1/a। और जैसे ओमेगा की इसको बढ़ाते चले जाएंगे ओवरऑल वैल्यू मैग्नीट्यूड घटता चला जाएगा। जैसे ही आप बढ़ाते चले जाएंगे ओमेगा की वैल्यू घटता चला जाएगा, चाहे आप इधर रहें चाहे आप इधर रहें, है ना। तो अल्टीमेटली ये है आपका जो कर्व है, ये मैग्नीट्यूड कर्व है ना, मैग्नीट्यूड ग्राफ आप बोल सकते हैं, या मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म का आपके सिग्नल का बेसिकली। चलिए मैं फिर से आपको आगे बताऊंगा बेसिकली। अब फिर अगर अपन फेस प्लॉट करें तो ओमेगा का जो फेस आता है वो हम चेक करते हैं कि देखिए जैसे जैसे हम ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं, ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं, आप इसको माइनस इनफाइनाइट भी रखेंगे तो आपको +π/2 मिलेगा। और अगर आप प्लस इनफाइनाइट रखेंगे तो आपको -π/2 मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा, और ओमेगा की वैल्यू 0 रख देंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये है आपका +π/2 से माइनस आपका, इसमें ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ये है -π/2 रिप्रेजेंट। और अल्टीमेटली जब π/4 रखेंगे तो π/4 रखने पे भी ओमेगा की वैल्यू अपन रखते हैं ओमेगा की वैल्यू a रखते हैं तो कितनी आएगी, π/4 वैल्यू आएगी π/4, और यहाँ पे -π/4। तो अल्टीमेटली देखिए अब मैं आपको असली में समझाना चाह रहा हूँ कि हम कर क्या रहे थे। हम e⁻−at जो कि क्या था, ऐसा था। ये टाइम डोमेन में ऐसा वेरिएशन हो रहा था। इसका हम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालना चाहें तो हम ये देखना चाहेंगे कि भैया इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड पता चल रहा है कि हर फ्रीक्वेंसी पे ये, हम हर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना, हर फ्रीक्वेंसी पे इसका ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का है। मतलब हम इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम देख पा रहे हैं। और इसका अगर फेस स्पेक्ट्रम देखना चाहें तो फेस स्पेक्ट्रम, ये वाला फेस स्पेक्ट्रम है आपका, फेस स्पेक्ट्रम है ना। तो फेस स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि हर फ्रीक्वेंसी पे इसका फेस कैसा है, तो +π/2 से इसका वेरिएशन -π/2 तक जा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म को अब डिफाइन करें तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक प्रोसीजर है, ये एक तरीका है क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिग्नल है जो कि टाइम डोमेन में है, सिग्नल टाइम डोमेन में है अगर, तो उसको अपन सिग्नल टाइम डोमेन को हम मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी की में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका फ्रीक्वेंसी में उसका फेस क्या होगा, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिग्नल है जो टाइम डोमेन में है, उसको अगर फ्रीक्वेंसी में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फेस क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक जो प्रोसीजर अपनाया गया है उसको अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ये सिंपल सा आपको मैं पूरा कहानी का सार आपको यही बता रहा हूँ कि भैया ऐसा ऐसा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ना।
तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम ये इस कंक्लूजन पे भी पहुंच गए, क्योंकि हम इतना वी वर डूइंग एनालिसिस फॉर मैग्नीट्यूड एंड फेस प्लॉट एंड इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, बिकॉज वी वांटेड टू नो दैट, देखिए ये एक सिग्नल से हम बहुत सारा चीज एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए मैं एक सिग्नल को पकड़ा। देखिए इसमें बात यह है कि आपका जब एफ टी था, एफ टी को आपने कन्वर्ट किया एफ ओमेगा में, एफ ओमेगा को हम लोगों ने चेक किया कि एफ ओमेगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों दे रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं हम ये बोल रहे थे कि जो एफ ओमेगा है वो कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू था, मतलब इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों था। फिर हम लोगों ने चेक किया कि क्या रियल वैल्यू जो है वो इवन है, तो हमने पाया कि यस इट इज इवन, और जब हम लोगों ने चेक किया कि ये इमेजिनरी क्या है, तो ये हम लोगों ने पाया ऑड है। फिर हम लोगों ने ये भी चेक किया कि एफ जो ओमेगा है वो आपका एफ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ओमेगा भी है। अगर ये पोर्शन सेटिस्फाई हो गया तो इससे हमको कंक्लूजन ये मिल रहा था कि जो एफ टी है वो क्या है, रियल वैल्यूड, मतलब आपका हो सकता है कि आपका ये वाला जो पोर्शन है एफ टी है वो रियल वैल्यूड हो, है ना, वो रियल वैल्यूड हो, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर अपन निकालते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपका एफ टी रियल वैल्यूड है तो उसका फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और अगर अब इस कंक्लूजन पे आप एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंक्लूजन आगे काम आएगा, अगर आपका इफ एफ टी को आपने प्रूफ कर दिया कि वो रियल वैल्यूड है, अगर, ठीक है, इफ योर एफ टी इज रियल वैल्यूड, तो आप ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर एफ टी रियल वैल्यूड है तो उसका जो मैग्नीट्यूड का स्पेक्ट्रम आएगा ना, जो मैग्नीट्यूड का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलने से आपको समझ में आता है ना कि फ्रीक्वेंसी में हम लोग बात कर रहे हैं कि हर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा उसकी वैल्यूज, तो वो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बोलूं तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमेशा इवन ही आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम का ग्राफ है, ये कैसा है, इवन इन नेचर है, तो ये हमेशा इवन आएगा, है ना। और अगर आप इसी का फेस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, फेस स्पेक्ट्रम, मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फेस स्पेक्ट्रम हमेशा इसका ऑड इन नेचर ही आएगा। तो देखिए ये पूरी जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पे सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हम लोगों ने अभी तक निकाला है कि अगर आपका एफ टी रियल वैल्यूड है तो आपका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमेशा इवन आने वाला है और फेस स्पेक्ट्रम हमेशा ऑड आने वाला है। उसका एफ ओमेगा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हो सकता है और वो उसका रियल पार्ट हमेशा इवन रहेगा और इमेजिनरी पार्ट ऑड रहेगा, और इसी को बोलते हैं कि इट सेटिस्फाई कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, है ना। कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं कि जब रियल पार्ट इवन हो और इमेजिनरी पार्ट ऑड हो तो उसको कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इट फॉलोज इट। तो ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको जरूर आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए या आपके दिमाग में स्क्रीनशॉट बना लीजिए, क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं है, आप इसको समझेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, है ना। अच्छी बात है। चलिए तो अब हम क्या चलते हैं, हम इसी का दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। मतलब देखिए मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कराया जो है मैग्नीट्यूड और फेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब मैं आपको एग्जिस्टेंस कंडीशन की तरफ बाद में लेके चलूंगा, कुछ प्रॉपर्टी को भी इसमें साथ में लेके चलते रहते हैं ताकि प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होते रहे और फिर हम एग्जिस्टेंस कंडीशन पे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आपको मैं एक और सिग्नल, इसी का जस्ट उल्टा सिग्नल से हम बेसिकली आपको टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी की तरफ लेके चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, है ना, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। ओके फाइन। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपका एफ टी है ना, एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ ऑफ ओमेगा, ये आपको पता है ना। लेकिन अगर आपके सिग्नल में एफ ऑफ माइनस टी हो जाए तब आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, तो वो आएगा एफ ऑफ माइनस ओमेगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है ना। ये बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टाइम डोमेन में रिवर्सल कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी वो चीज रिवर्सल होके आएगा। क्लियर कट। इसका एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर यही टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसी का मैं अगर ऐसा आपको पूछता हूँ, ये एफ टी है, लेट सपोज ये एफ टी है और एफ टी बोलते हैं ई टू द पावर, ठीक है, ई टू द पावर ए टी, ये e टू दी पावर at है लेकिन u ऑफ माइनस टी है क्योंकि ये नेगेटिव उसमें है, ठीक है, ये टाइम डोमेन में है
एम्पलीट्यूड, है ना, ये है। ओके फाइन। हाँ, तो अब क्या किया जाए। अब ये सिग्नल है जो कि आपको प्रॉपर्टी पता है कि एफ टी होने से, अगर इसका एफ ओमेगा हमको पता है, तो एफ ऑफ माइनस टी होने से एफ ऑफ माइनस ओमेगा हो जाता है। तो क्या आपको एफ ओमेगा पता है क्या? मतलब अगर आप चाहें तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। आप माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आप ले लीजिएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आप एफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी आप करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका एफ ओमेगा आ जाएगा कैलकुलेट। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है, अगर आपको ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी अगर आपको पता है कि इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो ए प्लस जे ओमेगा आता है। देखिए आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे भी वैल्यू को रख देंगे ना, ई टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है ना। तो वो मैथमेटिकल हो गया, मैं आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी से बता रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी में क्या है, अगर आपको ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी का एफ ओमेगा पता है, तो क्या आप ई टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी नहीं कर सकते? इसमें आपका आ जाएगा एफ ऑफ माइनस ओमेगा, तो ए माइनस जे ओमेगा। तो देखिए ये आपको जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ए ऑफ माइनस ओमेगा, ये है फाइनल आंसर। तो एक कितना आसान है। अगर मैं इसी चीज़ को मैथमेटिकल रूप में करता तो हो सकता है कि इंटीग्रेशन में थोड़ा सा एक आध मिनट लग जाता, लेकिन ये अगर आपको पता है तो आप इससे फट से निकाल सकते हो। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए तो दूसरा चीज़ आप आराम से निकाल सकते हो। और ये तो स्टैंडर्ड सिग्नल है भैया, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो सॉरी एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सिग्नल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका ये आराम से निकल जाता है। चलिए, अगर ये निकल जाएगा तो मैं आपको दूसरी एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी तो हम बचपन से मतलब मॉड्यूल 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई होता है जब आपका होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन दोनों सेटिस्फाई होते हैं। तो होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन का क्या फंडा है कि अगर एक f1t है ना, का अगर आपका f1 ओमेगा आता है, अगर आप f2t लेते हैं और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है f2 ओमेगा, अगर आप जब दोनों को सम कर देते हैं, है ना, दोनों का सम कर देते हैं, तो आपका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा आता है, तो ये लिनियरिटी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई अभी नहीं करता, अभी ये सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरा होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर f1t आपका f1 ओमेगा आता है ना, अगर आप a मल्टीप्लाई कर देते हैं f1t में और वो अगर सेम मल्टीप्लिकेशन आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी दिखता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है। तो इट फॉलोज होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और ये वाला जो है ये सुपरपोजिशन है। तो अगर ये दोनों को कोई चीज सेटिस्फाई करता है तब अपन बोलते हैं कि ये लिनियरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनल में आपको आंसर बताना चाहूँगा कि अगर कोई A1 मान लीजिए A1 है सिग्नल, ठीक है, और A2 है F2t मान लीजिए, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा अगर A1 F1 ओमेगा प्लस A2 F2 ओमेगा, तो आपको ये मान लेना है कि ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना। ये इसका मेन फंडा है। तो अगर ऐसा है तो चलिए करके देखते हैं। देखिए हम इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर एक सिग्नल है, लेट सपोज ये है e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है 1 बाय ए प्लस जे ओमेगा। अच्छी बात है। अब एक सिग्नल ऐसा है e टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है 1 बाय ए माइनस जे ओमेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूं, ठीक है, मैं अगर आपको पूछूं कि ये सिग्नल का बताइए, ये है आपका e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी प्लस e टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, इसको आम भाषा में e टू द पावर माइनस मॉड ए ऑफ टी भी कहा जाता है, डबल साइडेड एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगर लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और करता ही है फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि ये है तो दोनों का वो। तो यहाँ पे आप कर लीजिए a प्लस जे ओमेगा प्लस ए 1 बाय ए माइनस जे ओमेगा, है ना। ये हो गया आपका, जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 2a
ठीक है, आपका यहाँ पे आ गया a प्लस ए 2a बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो अल्टीमेटली आपका ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका e टू द पावर माइनस ए मॉड टी यू ऑफ टी है, e टू द पावर माइनस ए मॉड टी ही बोल दीजिए, यू ऑफ टी तो एक ही तरफ था, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस वाले सिग्नल का e टू द पावर माइनस ए मॉड टी, सॉरी e टू द पावर माइनस, हम ले लेते हैं e टू द पावर माइनस ए मॉड टी को, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ ऐसा आता है। तो देखिए अभी तक मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई, दो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनाना कितना आसान है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी से ही अधिकतम क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो आपको पहला प्रॉपर्टी टाइम रिवर्सल याद रखना है। टाइम रिवर्सल क्या, एफ टी अगर एफ ओमेगा है तो एफ ऑफ माइनस टी एफ ऑफ माइनस ओमेगा है, तो इससे आप देखिए बिना सॉल्व किए आपको फट से आंसर आ गया है ना। दूसरा लिनियरिटी प्रॉपर्टी, अब अगर मैं आपको ये बोलता कि भैया ई टू द पावर माइनस मॉड ए टी, ई टू द पावर माइनस, सॉरी यहाँ पे है ए मॉड टी को आप बनाइए, है ना, इसको मैं फिर से ऐसे लिख देता हूँ, ई टू द पावर माइनस ए मॉड टी को अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए तो आप क्या करेंगे, आप माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, फिर जीरो से इनफाइनाइट आप पूरा इंटीग्रेशन करते जाएंगे। बड़ा मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो सकता है, एक आध मिनट और ले सकता है, ये तुरंत है, तुरंत बन गया आपका आंसर। अगर आपको एक का पता है दूसरे का पता है, दोनों को ऐड कर लीजिए, आंसर आ गया। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म सेटिस्फाई करता है, तभी ये प्रॉपर्टी हमारे को शो हो रही है ना। इसी का लीनियरिटी प्रॉपर्टी का दूसरा यूज करते हुए अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप ये सिग्नल बताइए, तो ये सिग्नल और ये सिग्नल आपको कोई बोलता है, इसको क्या बोलेंगे, ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, जस्ट इसका उल्टा है, तो ये माइनस ऑफ ई टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी है। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम है ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ ई टू द पावर, सॉरी ये है ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का, तो आपको पता है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वन बाय ए प्लस जी ओमेगा, और इसका एक्चुअल में इतने का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वन बाय ए माइनस जे ओमेगा। तो एक्चुअली ये सिग्नल तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, वन बाय ए प्लस जे ओमेगा, और यहाँ पे एक्चुअली माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस ले सकते हैं, वन बाय ए माइनस जे ओमेगा, जिससे आपका आंसर आ सकता है टू जे ओमेगा, टू जे ओमेगा बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, टू ए स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, जिससे अच्छा वैसे ये आएगा माइनस टू जे ओमेगा, है ना, तो माइनस टू जे ओमेगा आ जाएगा, जिससे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जे ऑफ माइनस टू ओमेगा बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो आपका प्योरली प्योरली इमेजिनरी आ गया, जिससे आपको कुछ कंक्लूजन फिर से निकाल सकते हैं कि देखिए अगर आप ये एक सिग्नल लिए थे, ये वाला एक ये वाला सिग्नल लिए थे, ये कैसा सिग्नल था, या फिर ये वाला सिग्नल आप लिए थे, ये कैसा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था वन बाय ए प्लस जे ओमेगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया था, वन बाय ए माइनस जे ओमेगा। ये कैसा है, ये सिग्नल है कॉम्प्लेक्स सिग्नल। तो कभी भी आपका फोरियर जो आपका एफ टी है, एफ टी अगर रियल वैल्यूड है, रियल वैल्यूड है, और ये इवन है या ऑड है, तो आप बोलेंगे नाइदर, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये सिग्नल ना ही इवन है ना ही ऑड है और रियल वैल्यूड है। तो इसका जो एफ ओमेगा आएगा ना, इसका जो एफ ओमेगा आएगा, एफ ओमेगा वो हमेशा, ठीक है, जो आपका आएगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही आएगा। ये हम लोगों ने कहाँ पे देखा है, फोरियर सीरीज में भी देखा था, अगर आपको याद होगा कि एफ टी अगर नाइदर इवन है नॉर ऑड है, ठीक है, उस टाइप के सिग्नल में जो हमारा सी एन आता था फोरियर कोफिशिएंट, या फिर अगर आप इसके एफ ओमेगा की बात कर लीजिए, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड आएगा, जिसमें रियल पार्ट भी रहेगा और इमेजिनरी पार्ट भी रहने वाले हैं, है ना। तो ये आपके दिमाग में गठान बांध दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे आता ही आता है ना। दूसरा आपको फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ, अब हम लोगों ने इसके बाद ये वाला सिग्नल बात किया था, है ना, और उसके बाद हम लोगों ने सिग्नल की बात की कुछ ऐसा और कुछ ऐसा सिग्नल की। अच्छा ये सिग्नल कैसा है, अगर ये सिग्नल को आप देखें एफ टी ना, एफ टी जो है वो रियल वैल्यूड है कि नहीं, आप एफ ओमेगा से चेक कर सकते हैं। एफ ओमेगा को, एफ ऑफ ओमेगा को एफ ऑफ एब्स्ट्रिक्ट माइनस ओमेगा को अगर इक्वेट हो रहा है तो वो रियल वैल्यूड है, अदरवाइज नहीं है रियल वैल्यूड। तो अगर एफ टी आपका रियल वैल्यूड सिग्नल है, ठीक है, आपका एफ टी ये वैसे रियल वैल्यूड है, आप चेक कर सकते हैं रियल वैल्यूड है,
और अगर ये इवन है तो उसका जो एफ ओमेगा आएगा ना, उसका एफ ओमेगा वो कैसा आया देखिए। तो इसका आप अगर आपको इसका ध्यान होगा, इसका जो आ रहा था वो आ रहा था 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको अगर ध्यान होगा यही फोरियर, ये कैसा है एकदम रियल पार्ट है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ रियल ही आएगा। एफ ओमेगा इज ओनली रियल। ठीक है, ठीक है, ओके, प्योरली रियल होगा इसका एफ ओमेगा भी। और इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी इवन ही नेचर का होगा, तो ये भी इवन होगा। तो देखिए एफ टी अगर इवन है तो एफ ओमेगा भी इवन होगा। ये बात तो हम उधर भी फोरियर सीरीज में भी देखा था, यहाँ पे भी देख रहे हैं। एफ टी इवन है तो एफ ओमेगा भी इवन होगा। एफ टी रियल वैल्यूड है और इवन है तो ये एफ ओमेगा भी रियल वैल्यूड और इवन ही होगा। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि ये जो सिग्नल है ये कैसा टाइप का सिग्नल था, ये सिग्नल जो हमारा देखे थे, ये एफ टी ना, इसको आप चेक करेंगे तो ये भी रियल वैल्यूड था, है ना, रियल वैल्यूड था। लेकिन ये कैसा है, ऑड इन नेचर है। एफ टी ऑड इन नेचर है, और ऑड इन नेचर होने की वजह से इसका जो एफ ओमेगा आया वो कैसा आया आपका, अगर याद होगा तो जे का -2 ओमेगा/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जे तो था ही, है ना, प्योरली इमेजिनरी आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर एफ टी रियल और ऑड होगा तो उसका एफ ओमेगा कैसा आएगा, एफ ओमेगा आपका रियल नहीं आएगा, प्योरली इमेजिनरी आने वाला है। एफ ओमेगा प्योरली इमेजिनरी आने वाला है, ये बात को याद रखिएगा। और कैसा नेचर होगा, ऑड इन नेचर होगा, क्योंकि एफ टी सिग्नल ऑड है ना भैया, एफ टी सिग्नल ऑड है तो एफ ओमेगा भी ऑड ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। एफ टी इवन है तो एफ ओमेगा भी इवन ही होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं आती। परेशानी बस इतनी आती है कि एफ टी को चेक करने के लिए आपको एफ ओमेगा को एफ कॉन्जुगेट ओमेगा माइनस ओमेगा से आपको इक्वेट करना होता है, तब आपका एफ टी पता चल जाता है कि रियल वैल्यूड है कि नहीं। और एफ ओमेगा को जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि उसमें रियल वैल्यूड आ रहा है या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड आ रहा है। तो ये कंक्लूजन है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसलिए आपको मैं ये पूरा कंक्लूजन बार बार बता रहा हूँ कि एफ टी रियल वैल्यूड और इवन इन नेचर होता है तो एफ ओमेगा उसका रियल ही आता है ना, रियल और इवन मतलब रियल ही आएगा, और रियल और ऑड होता है तो प्योरली इमेजिनरी आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आप रट लें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप रटें, इसलिए मैं इतना फोकस करके बार बार इस चीज़ों को समझा रहा हूँ, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से शांतिपूर्वक बैठ के समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और इस लेक्चर के बाद हम लोग अगले लेक्चर में जब आएंगे तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड फेज रिप्रेजेंटेशन देख लिए, एग्जिस्टेंस कंडीशन देखेंगे कि एग्जिस्टेंस कंडीशन कैसा है, और स्टैंडर्ड सिग्नल का तो अब हम लोग डबल एक्सपोनेंशियल सिग्नल देख ही लिए हैं, सिग्नम टी वगैरह देखेंगे, यूटी क्या होता है, और आपका गेट पल्स क्या होता है, ट्रायंगुलर पल्स क्या होता है, इन सब को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और प्रॉपर्टी तो हम लोग देखते जा ही रहे हैं, है ना, हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल वगैरह सब देख रहे हैं, तो सब पैरेलल में चल रहा है। तो उम्मीद है कि ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये बेस है, इसको आप बार बार देखिए, इसको समझिए, तो आपको आगे का पोर्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे के पोर्शन के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक इट, डू शेयर इट to those people who are in genuine need for free classes, and do subscribe the channel if you have not subscribed it, and ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।